Okay, in the last lecture we have started the computer hardware. Okay, operating system we know, the functions of operating system we know. Yes, anyone can tell the which are the functions of operating system? Just give the name of that functions. Yes. Process management, storage management, Hmm. memory management, Hmm. security, Hmm. and so on. Yes, very good. Yes, anyone can try. Yes, other students, anyone want to try? Hmm. Yes, yes, yes. Functions of operating system. जितना रिमेम्बर है, जितने याद है, वैसे ऐसे नहीं कि 11 to 11 ही मुझे चाहिए. Memory management, processor management, file management, device management. Yes, very good, Kasim. Yes, good. Yes, in girls में कोई ट्राई करेगा? कैफ, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट. यस, कैफ. ओके, गुड. यस, इन गर्ल्स कोई ट्राई करेगा? गर्ल्स आर वेरी क्वाइट इन दिस lecture. Why? Yes, Poonam is there. Then Rita is there. Yes, Nida. Yes, Poonam. Poonam, yes, yes. Memory management, process management, file management, input output management, security. Yes, very good. Good, Poonam. Okay. So these are the functions of operating system that we have learned. Okay, and we will learn in detail also with for every functions. Okay, because every chapter has every function has one separate chapter is in our syllabus. So we will learn in detail every functions. Okay, don't worry. Okay. Yes, hardware we have started. Now you know what is a hardware. Okay, physical structure. You call the hardware. Okay, physical structure को हम लोग hardware बोलेंगे, जिसको हम लोग touch कर सकते हैं. There are again two parts of the hardware: internal components and external components. Okay, internal components means inside the CPU. Okay, CPU के inside जो भी components है, ठीक है, memory हो गया, motherboard हो गया, power supply, hard drive, ठीक है, transistor, chips, all are the internal components. Okay, and which are the external components? The peripherals जो है, जो peripherals हमारे है, that are the एक्सटर्नल कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर है, ठीक है, ऑल आर दी पेरिफेरल्स, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर्स के आजू बाजू रखे हुए. सो वी कैन टच इजीली देम. ओके, जो इंटरनल कंपोनेंट्स है उसको भी हम लोग टच कर सकते हैं, बट ऑल दैट इंटरनल कंपोनेंट्स आर इनसाइड द सीपीयू. ठीक है. यस, अगेन देयर आर अगेन टू पार्ट्स किया हुआ है: इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. ओके, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. जो पेरिफेरल्स है उनको अगेन डिवाइड किया हुआ है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. So which are the input devices? The devices through which we can enter some data into the system. Okay, it called the input devices. जो devices के through हम लोग data system में enter करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Input devices. For example, mouse. Okay, using mouse you can type something, you can type commands, you can type. Then जो पेपर में जो भी text होगा, जो भी लिखा हुआ है, तो जो भी है उसमें, that will be सॉफ्ट कॉपी उसका हमको मिल जाएगा. मतलब जो हार्डवेयर, सॉरी, जो हार्ड कॉपी हमने डाला था, हार्ड कॉपी का हमको क्या मिलेगा? सॉफ्ट कॉपी. ओके, सो दैट इज अ स्कैनर. स्कैनर इज आल्सो इनपुट डिवाइसेस. ओके, देन योर फ्लैश ड्राइव या तो मेमोरी कार्ड, ठीक है, ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, माइक्रोफोन्स, ओके, कैमरास, ओके, जिससे हम लोग इनपुट दे रहे सिस्टम को. व्हेन वी आर गिविंग इनपुट टू द सिस्टम, then system will perform some processing on that input and it retrieve some output to us. Okay, monitors, printers, speakers, headphones, earphones, all are the example of computer hardware. Output devices. Which devices? Output devices. Okay, through which we can get some informations. Okay, that called the output devices. So you have to remember the names. Okay, I will ask the question in MCQ like key in following devices, which are the input devices, which are the output devices. Okay, I can ask this type of questions. So please note down, students. Okay, when I will tell you कि ये ऐसा questions मैं पूछूंगी एग्जाम में, तो you have to note down. आपको note down करते जाना है. ठीक है. Yes, the one is motherboard. ठीक है. What is motherboard? The motherboard is a computer central communication backbone connectivity point. Okay, through which all the components and external peripherals connect. Okay, you heard the word motherboard. Okay, आपने motherboard का word सुना होगा. ठीक है, normally
हम लोग को पता है कि व्हाट इज मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है हमको इतना पता है कि इट इज इन सीपीयू में फिट किया हुआ रहता है, कुछ तो रहता है उस पर बहुत सारा सर्किट्स वगैरह है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ मदरबोर्ड? तो मदरबोर्ड इज अ वन यू कैन से कि सर्किट बोर्ड। ओके, इट इज अ वन सर्किट बोर्ड कि जिसमें सारे कंपोनेंट्स जो है, कनेक्टिविटी जो है वो बोर्ड से किया जाता है। ठीक है, आपका जो रैम है, आप रैम कहाँ पे फिट करते हो? मदरबोर्ड में स्लॉट्स दिया हुआ रहता है। ठीक है, द मदरबोर्ड इज अ कंप्यूटर सेंट्रल कम्युनिकेशंस बैकबोन कनेक्टिविटी पॉइंट। ओके, बैकबोन कनेक्टिविटी पॉइंट you can say through which all the components and external peripherals connect. Okay, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल पेरिफेरल्स है, पेरिफेरल्स मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल्स? यस, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स मतलब क्या? यस, व्हाट इज द मैम मीनिंग? माउस। यस, ओके, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स, ओके, माउस, कीबोर्ड्स, ठीक है, जो प्रिंटर्स, ठीक है, जो भी हम है हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? सीपीयू में वी आर कनेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो पेरिफेरल्स मैंने आपको बताया ना, जो कंप्यूटर्स के आजू बाजू हम लोग रखते हैं, दैट आर द पेरिफेरल्स। ठीक है, जो भी डिवाइसेस है, ठीक है, माउस, कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स, ठीक है, स्कैनर्स, ऑल आर द पेरिफेरल्स। ठीक है, the motherboard is a main printed circuit board in a computer. Okay, also called a main board, आप उसको main board भी बोल सकते हो। The motherboard holds the important components including CPU, RAM, power supply, graphics card, sound card. Okay, all these things are imported into the motherboard. Okay, it allocates the power and also communication to and between the CPU, RAM and all the computer hardware components. ये जितने भी components है ना, वो कहाँ पे connected है? मदरबोर्ड में connected है। See, you can see in this figure. ठीक है, this is a power supply. Okay, ये आपका RAM slot से। Okay, जब कॉलेज स्टार्ट, I told you when college will start, I will show you this motherboard. ठीक है, और हम लोग उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हर एक पार्ट्स को क्या बोलता है। ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब हम लोग कॉलेज में जाएंगे तो आई विल शो यू वन मदरबोर्ड। ठीक है, लैब में हम लोग मदरबोर्ड दिखाऊंगे मैं आपको, तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन से पार्ट्स क्या है। ओके, बिकॉज एज आई टी स्टूडेंट वी शुड नो कि मदरबोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स है। ओके, तो आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द ऐसे एक फिगर फाइंड करोगे नेट पे मदरबोर्ड का, एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेन जो कंपोनेंट्स है वो आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपको गूगल में डालना है मदरबोर्ड्स। ओके, मदरबोर्ड का इमेज फाइंड करना है आपको, और वो मदरबोर्ड में कौन से कंपोनेंट्स है वो वाला इमेज फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा कंपोनेंट्स पता चलेगा कि विच आर द कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट्स। ओके, तो ये थोड़ा करो, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज टेल मी के कौन से कंपोनेंट्स आपको दिखा मदरबोर्ड पे इमेजेस में। ओके, यस, एवरीवन विल डू ना? यस स्टूडेंट्स, करोगे ना सब लोग? यस मैम, श्योर। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड, गुड। ओके, अगर मैं भूल गई पूछना तो आप मुझे याद करवाओगे कल लेक्चर में, मैम ऐसा आपने दिया था। ठीक है, तो प्लीज रिमाइंड मी टुमारो के ऐसा मैंने आपको होमवर्क दिया था। ओके, यस, वेरी गुड। ओके, CPU. Okay, what is the full form of CPU? Central Processing Unit. Okay, what is the full form of CPU? Central Processing Unit. Okay, this is a basic, mostly all the students know. Okay, the basic thing, if you have the subject computer in 11 12 में, then you have know all these things. Okay, अगर किसी के पास किसी ने नहीं लिया होगा computer subject, then I explain you what is CPU. The full form of the, first of all, what is the full form of CPU? Central Processing Unit. ओके, सीपीयू का हम लोग प्रोसेसर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वी कैन से दी प्रोसेसर आल्सो। ओके, सीपीयू का दूसरा नेम क्या है? प्रोसेसर। ओके, हम लोग ना कौन सा प्रोसेसर है, जब आप लैपटॉप लेते हो या तो डेस्कटॉप, व्हेन यू हैव परचेज, देन यू आस्किंग ना कि कौन सा प्रोसेसर है, इंटेल है कि क्या है प्रोसेसर। ठीक है, देन सेंट्रल प्रोसेसर भी यू कैन से उसको बोल सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर आल्सो यू कैन, उसको नाम है। ठीक है, एंड CPU का प्रोनाउंस है CPU, is the central processing unit of computer. These are all the alternatives words you can use for the CPU. Okay, so CPU को you can say processor, or you can also say central processor, you can also say microprocessor. Okay, and full form of the CPU is central processing unit. Okay, a computer's CPU handles all the instructions it receives from the hardware and software running on the software. What is the use of CPU? CPU is the main, you can say, heart of your computer.
ठीक है। तो जो एग्जीक्यूशन जो है, जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रहे सिस्टम में, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन करता है? सीपीयू। यू कैन से द सीपीयू एज अ, जैसे हमारा माइंड है, ठीक है, तो यू कैन से द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज अ सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यू कैन से, बिकॉज ऑल द एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूशन कौन करता है? सीपीयू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कमांड इस पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया, तो व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन दिस फोल्डर, ठीक है, फोल्डर पे क्लिक करके कुछ फाइल सिलेक्ट करो, ओपन करो, तो उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सीपीयू। कौन कर रहा है? सीपीयू। मतलब आपने हार्डवेयर माउस से कमांड दिया कि उस पर क्लिक करना है, और उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सीपीयू। तो ऑल द एग्जीक्यूशन जो है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। ओके। ओके, एक मिनट, सॉरी। ओके, यू कैन सी दिस इज अ प्रोसेसर, सीपीयू। ये आपका प्रोसेसर। सीपीयू को अनदर वर्ड भी है प्रोसेसर। जनरली हम लोग प्रोसेसर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट वर्ड वी आर यूजिंग? प्रोसेसर। हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोसेसर। तो सी दिस इज इंटेल कंपनी का इंटेल और पेंटियम प्रोसेसर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है ना, दैट इज अ प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या है? प्रोसेसर। कहाँ पे फिट किया रहता है? मदरबोर्ड में। यू विल फाइंड दिस प्रोसेसर इन मदरबोर्ड, ठीक है। जो हमने ऊपर पहले देखा कि मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, तो ये मदरबोर्ड में क्या फिट हुआ होता है? सीपी, ये प्रोसेसर, इंटेल कंपनी का प्रोसेसर। ओके, व्हाट जो भी प्रोसेसर आप लोग परचेज करोगे, सीपीयू मतलब जो भी कंपनी का लोगे, ठीक है, वो उसमें ये फिट किया रहता है, प्रोसेसर, ठीक है। The second is computer memory. Okay, a memory is just like a human brain. Okay, human brain मतलब क्या? It is used for storing the data and instruction. Store करने के लिए, okay, store करने के लिए। But execute कौन करता है? जो भी हम लोग execution जो हो रहा है हमारा, ठीक है, वो execution कौन करेगा? CPU, ठीक है। सिस्टम डाउन प्रोसेस, डाउनलोडिंग करना, तो डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो रहा है, उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सीपीयू। आप म्यूजिक सुन रहे हो, वो म्यूजिक को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सीपीयू, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूशन कौन करेगा? सीपीयू। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका जो प्रोसेसर है, दैट विल परफॉर्म ऑल दी एग्जीक्यूशंस, एंड वो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोंट बी कंफ्यूज के आपने हमने पहले बोला ऑपरेटिंग सिस्टम सब करता है, अभी बोले सीपीयू सब करता है, अभी बोले मेमोरी करे, नो। ओके, आपके जैसे हार्ट, हमारे बॉडी में हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है, हार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वर्किंग अवर बॉडी, ठीक है, हार्ट इम्पोर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम माइंड इज ऑल्सो, ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हैंडलिंग अवर बॉडी, ठीक है। तो सेम थिंग, ओके, सेम थिंग है। आपका जो सीपीयू है, सीपीयू इज यूज, सीपीयू एग्जीक्यूटिंग ऑल दी कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस कौन एग्जीक्यूट करता है? सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, ओके। बट उसको हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। हमारा जो दिमाग में जो हम बोलता है, जो हम लोग प्रोसेस कौन करता है? हमारा दिमाग। बट हमारा बॉडी क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ हार्ट। तो सेम, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल्स है, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो चल रहा है, ओके। बट उसमें एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस फंक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, जैसे हमारे बॉडी में हार्ट है, वैसे ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बिकॉज हमको फॉल बी अलाइव होने के लिए हार्ट इज नेसेसरी, ठीक है। अगर हार्ट हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा बॉडी कुछ नहीं है, ठीक है। सेम वैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। एंड जैसे हमारा दिमाग सब एग्जीक्यूट करता है, हम लोग वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वाई? बिकॉज ऑफ आवर माइंड, ओके। जो भी हम बोलते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, बिकॉज ऑफ अवर माइंड। तो सेम वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन कौन करता है? सीपीयू, ओके। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सीपीयू। उसको समझ में कैसे आ रहा है कि हमने आउटपुट ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट होना चाहिए, हमने ये कमांड लिखा, हमने क्रोम पे क्लिक किया तो क्रोम शुड बी ओपन, ओके। हम कुछ डाउनलोड करें तो डाउनलोडिंग होना चाहिए, उसको समझा कौन, उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग। तो दिस इज सीपीयू एंड दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द थर्ड वन इज कंप्यूटर मेमोरी, okay, the third one is computer memory. So what is memory? Memory is just like human brain, but it is used to store data and instructions.
ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। आप जो भी फाइल स्टोर करे हो सिस्टम में, ठीक है, जो भी आपका डेटा सेव करे वो कहाँ पे सेव होता है, मेमोरी में सेव होता है। कहाँ पे सेव होता है, मेमोरी में। कुछ तो स्टोर होना चाहिए ना। अब ये फाइल में आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको दिस पीपीटी आई शो यू, अभी मैं आपको यही पीपीटी दिखा रही हूँ। व्हाई? बिकॉज इसको मैंने कहाँ पे तो स्टोर करके रखा है सिस्टम में, ठीक है। तो ये डेटा स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेमोरी। मतलब हमारे पास क्या है कंप्यूटर में, कंप्यूटर मेमोरी। तो memory is used to store data and instruction. Okay, computer memory is a storage space. See, you can see, read. Computer memory is a storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. Okay, computer memory is a storage space in the computer. Yes, yes. Anyone has any doubt? I think No, ma'am. Okay, okay. Yes. So computer memory is a storage space in the computer, okay, where के data is to be processed. यहाँ पे data store भी होता है and वहाँ पे उसको हम लोग process भी करते हैं, and उसको process करने के लिए we require the instructions. Okay, we require the instructions. हमको instruction की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम लोग ने डेटा स्टोर तो कर दिया, बट जब हम डेटा स्टोर करते हैं उसको ओपन करना, तो ओपनिंग इज इंस्ट्रक्शन। उसमें कुछ अपडेट करे तो अपडेट इज इंस्ट्रक्शन। ओके, वो कमांड इंस्ट्रक्शन, तो उसको हम लोग बता रहे हैं कि क्या करना है, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये जो सारे वर्ड्स जो है ना, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कमांड्स। ओके, के फाइल ओपन करना है, डाउनलोडिंग करना है, ठीक है। डाउनलोड इंस्ट्रक्शन है कि हमको डाउनलोड करना है, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फाइल ओपन करना है, उसको उसमें हमने कुछ टाइप किया दैट वी वांट टू डिलीट, ओके, वो हम कमांड दे रहे हैं कि हमको फाइल के साथ क्या ऑपरेशन करना है, ठीक है। दैट आर द कमांड। ओके, वो कमांड हम लोग उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। ओके, एंड जो हमने कमांड दिया उसको एग्जीक्यूट करना मतलब क्या, प्रोसेसिंग करना। हमने कमांड दिया कि डिलीट करना है, तो वो डिलीट हो रहा है, तो वो डिलीट कौन कर रहा है, डिलीटिंग इज अ प्रोसेस। वो प्रोसेस अभी स्टार्ट किया, तो वो कौन करेगा, सीपीयू। प्रोसेस एग्जीक्यूट कौन करेगा, सीपीयू। प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक कंसेप्ट जो दिमाग में अलग अलग रखो, मिक्सिंग मत करो, कंपेयर मत करने जाओ। मेमोरी, जैसे मैंने बोला यस कंप्यूटर मेमोरी, तो आपको क्लिक होना चाहिए यस मेमोरी, मतलब हम लोग मेमोरी में कुछ डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सीपीयू मैंने बोला तो आपको दिमाग में यस लाइट होना चाहिए। सीपीयू मतलब क्या, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है हमारे सिस्टम में, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है ऑल दिस थिंग्स, वो कौन कर रहा है, सीपीयू, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सारे हैंडल कर रहा है। कंप्यूटर कौन स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऐसे जैसे मैंने वर्ड बोला वैसे को क्लिक होना चाहिए, बट ये धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे, बिकॉज दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। ओके, आप अभी कॉलेज में अभी एडमिशन ले आए, तो यू विल रिक्वायर सम टाइम। तो किसी को एक उसमें समझ में आ जाएगा, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल बी फैमिलियर, डोंट वरी। उसके लिए यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट ऑल दिस कंसेप्ट, ठीक है। जो भी मैं आपको बोलूंगी यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। मैं असाइनमेंट दूंगी आपको लिखने के लिए, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखते जाना, जैसे आपको समझ में आए। आप हिंदी में लिखो, आप जो भी लैंग्वेज बैकग्राउंड से हो आप उसमें लिखो, चलेगा। व्हाई? बिकॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, असाइनमेंट मैं आपको दूंगी लिखने के लिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ड्यूरिंग द लेक्चर्स जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कमांड। ओके, तो आप साइड बाय साइड लिख सकते हो, यू कैन मेक नोट्स। ओके, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड ऑल दिस पीपीटी। मैं आपको ये पीपीटी वगैरह सब प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, बट अभी आपको समझने के लिए you can write. Yes, so this is computer memory. Okay, memory is there are three types of memory. Okay, we know what is the use of memory. हमको पता है अभी memory मतलब क्या, कि memory में we can store the data, हम memory में data store कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतना हमको basic concept we know कि memory is used to store the data. Memory is used to store the data. Okay, now there are three types of memory. The first is primary memory. Okay, the first is primary memory, मतलब main memory, you can say main memory भी उसको बोल सकते हो। Second type is secondary memory. Okay, and the third is a cache memory. Okay, these are the types of memory. What is the use of memory? To store the data. हम memory में data store करेंगे। Okay, data store करने के लिए we will use the memory, but there are again three types of memory. The first is primary memory, or you can say main memory. The second is secondary memory,
and the third one is catch memory. Okay, third one is catch memory. Primary, secondary and catch memory. Okay, in this figure this is a primary memory. Okay, I will explain, मैं explain करूंगी आपको what is primary, what is secondary, what is catch memory. बट अभी ये जो आप फिगर में देख रहे हो दैट इज अ प्राइमरी मेमोरी. ये कौन सा मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी. एंड दिस मेमोरी जो है वो कहाँ पे फिट हुआ रहता है? मदरबोर्ड में. ओके, इन द मदरबोर्ड दिस मेमोरी इज फिट है. ओके, सी. ओके, दिस आर द मेमोरी स्लॉट्स. ये जो है दैट इज मेमोरी स्लॉट्स, उसमें आप लोग फिट कर सकते हो मेमोरी. ठीक है, मदरबोर्ड आप देखोगे ना अभी फिगर में, जो जरा नेट पे सर्च करो, यू विल फाइंड कि यस कैसे फिट किया हुआ रहता है. ठीक है, यस. ओके, तो ये फिगर में जो है दैट इज मेमोरी. कौन सा मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी. ओके, यस. नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? Yes, what is primary memory? So primary memory holds only those data and instruction on which the computer is currently working. Okay, चलो, what is primary memory? Primary memory मतलब क्या? Primary memory में वही डेटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर अभी करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, primary memory holds only those data and instructions on which computer is currently working. कंप्यूटर भी जिस पे काम कर रहा है करंटली, मतलब सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है करंटली, सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी. नाउ एनीवन कैन टेल कि अभी मैं आपको क्या, मतलब मेरे सिस्टम में अभी क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? मेरे सिस्टम में अभी क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? कैन एनीवन कैन टेल? लेक्चर में. यस, लेक्चर एग्जीक्यूट हो रहा है. यस, ओके, लेक्चर एग्जीक्यूट हो रहा है. बट लेक्चर के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ? कौन सा सॉफ्टवेयर? आई एम यूजिंग जूम सॉफ्टवेयर. यस, तो अभी जो प्राइमरी मेमोरी जो है, जो मैंने आपको दिखाया कि दिस इज अ प्राइमरी मेमोरी, दिस इज अ प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी. तो ये प्राइमरी मेमोरी में क्या स्टोर है? अभी क्या स्टोर है? जूम. अभी एग्जीक्यूट करंटली मेरा सीपीयू एग्जीक्यूट क्या कर रहा है? जूम. तो जूम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब प्राइमरी मेमोरी में अभी जूम है. एंड मैं आपको और क्या दिखा रही हूँ? पीपीटी. ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ये पीपीटी में आपको दिखा रही हूँ. ओके, अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ. ओके, तो पीपीटी मेरा ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है दैट पीपीटी एंड जूम नाउ इज स्टोर करंटली अभी किसमें स्टोर है? मेन मेमोरी में स्टोर है. किसमें स्टोर है? मेन मेमोरी में स्टोर है. ओके, ऐसा अगर हम लोग देखें तो मैंने मेरा जूम इंस्टॉल करके रखा है. तो मेरा जो जूम मैंने इंस्टॉल करके रखा है सिस्टम में दैट इज इन सी ड्राइव, दैट इज इन सेकेंडरी डिवाइस में है. बट प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा? जो सीपीयू करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है जो डेटा, ठीक है, सीपीयू करंटली जो एग्जीक्यूट कर रहा है दैट विल बी स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी. ओके, इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी. Okay, it has limited capacity and data is lost when power is switched off. Okay, जो प्राइमरी मेमोरी, जो मेन मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है दैट विल बी लॉस्ट व्हेन द पावर विल बी ऑफ. ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं डेस्कटॉप से लेक्चर ले रही हूँ. ओके, आई एम टेकिंग द लेक्चर फ्रॉम डेस्कटॉप. अगर यहाँ पे पावर ऑफ हो गया, ठीक है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा पूरा क्लोज हो जाएगा. तो प्राइमरी मेमोरी में जो अभी जूम स्टोर है एंड पीपीटी है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. तो जब अगेन लाइट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो मुझे अगेन सिस्टम चालू करना होगा, अगेन मुझे जूम ओपन करके आपको इनवाइट करना होगा एंड अगेन मुझे ये पीपीटी ओपन करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मतलब प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा हमारा है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता. ओके, इन द प्राइमरी मेमोरी वी कैन नॉट स्टोर दी डेटा परमानेंटली. हम लोग उसमें परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, पावर ऑफ हो गया तो वो क्या हो जाएगा? ये सब पूरा क्लोज हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में से निकल जाएगा. वाई प्राइमरी मेमोरी में से निकल जाएगा? बिकॉज प्राइमरी मेमोरी में वैसे ही डेटा स्टोर होता है जो करंटली सीपीयू एग्जीक्यूट करता है. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. This is a main concept. Okay, primary memory, secondary memory is a main concept. Okay, ये आपको समझ में आना ही चाहिए. अगर if you have any doubt, so you can ask me. Okay, and it has a limited capacity. ठीक है, it has a limited capacity as compared to secondary memory. हाँ, secondary memory हमारा हार्ड डिस्क है, हमारा पेन ड्राइव है, हमारा डीवीडी है, all are the secondary device. ये सारे क्या है? सेकेंडरी डिवाइस है. उसको अगर हम लोग कंपेयर करें हमारे मेमोरी के साथ तो वो रैम, मतलब प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या? रैम. ओके, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी. दिस टू आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. ओके, ये प्राइमरी मेमोरी के क्या है? टाइप्स है. 2 टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी का. तो हम लोग पूछते ना कितना रैम है आपके सिस्टम में, कितना रैम है? मोबाइल में जब हम लोग ले रहे हैं तो कितना रैम है? ठीक है,
तो वो रैम का जो हमारा मेमोरी का साइज क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी वाला होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डिवाइस। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है, वो किससे, जो प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको दिखा, ये किससे बना हुआ रहता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी, ओके, ये आपको याद रखना है, okay, this point you should remember. Okay, primary memory holds only those data and instruction on which the computer is currently working. Okay, the data and way point, this is the same point, the data and instruction required to be processed reside in the main memory. Okay, primary memory you can say, or main memory you can say. Okay, both are the same, similar. You can either use primary memory word use कर सकते हो, or main memory. Okay, don't get confused. Main memory क्या है, primary memory क्या है? Primary memory is the main memory. Okay. Okay, now next is, it is divided into two subcategories. Primary memory is divided into two categories. Primary memory को two parts में divide किया है. The first is RAM and the second is ROM. What is RAM? Random access memory. And what is ROM? Read only memory. Okay, random access memory and read only memory. Okay, तो random access memory में क्या होगा, जब currently execute करें, that is our जहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, करंटली एग्जीक्यूट कर, सीपीयू करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कहाँ पे होता है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। एंड व्हाट इज रोम? रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, व्हेन यू विल स्टार्ट योर सिस्टम, तो मैंने आपको बताया जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, हार्ड डिस्क में स्टोर किया रहता है, जैसे हमने स्विच ऑन किया, सीपीयू का बटन प्रेस किया, तो लैपटॉप का बटन प्रेस किया, एट दैट टाइम आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में स्टोर है, वो कहाँ पे लोड हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी में। ओके, योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी लोड इनटू द रीड ओनली मेमोरी। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम को वी कैन नॉट चेंज, तो रैंडम ओनली मेमोरी में क्या स्टोर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसको हम लोग मॉडिफाई, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, बट रैम में जो भी है उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, इसको मुझे क्लोज करना है तो आई कैन क्लोज, मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ, ठीक है। तो रीड, दिस इज अ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में क्या होगा, जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लोड होगा, रीड ओनली मेमोरी में, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन स्टार्ट अवर सिस्टम। ओके, दिस इज द प्राइमरी मेमोरी स्टूडेंट्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, आपको ये बेसिक्स थोड़ा याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। दिस आर द सेमीकंडक्टर मेमोरीज, इट इज नोन एज मेन मेमोरी। ओके, यूजुअली वॉलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मतलब क्या, जो पावर ऑफ हो रहा है, ठीक है, पावर ऑफ हो गया या तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर हमारा सिस्टम बंद हो गया तो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल बोलते हैं। Okay, volatile memory. Why volatile memory? Because data is lost in case power is switched off. Okay, so that is a volatile memory. So primary memory कैसा है आपका, volatile memory. Primary memory is a volatile memory. Why volatile? What is the meaning of volatile? कि data is lost if the power is switched off, or in case the power is switched off. Okay, so these things you have to remember. Okay, it is a working memory of the computer, faster than secondary memory. Secondary memory से faster है. What is secondary memory? I will explain. Next slide में है what is secondary memory. Okay, so it is a faster, primary memory faster है. Okay, a computer cannot run without the primary memory. Okay, a computer cannot run without the primary memory. Why? Because सिस्टम जो कंप्यूटर करंटली जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में। तो हमको एग्जीक्यूट करना है, सीपीयू को अगर एग्जीक्यूट करना है तो वो कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, प्राइमरी मेमोरी में से। तो अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर कैन नॉट रन। ओके, कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। ओके, तो दिस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन मेमोरी। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज अ प्राइमरी मेमोरी और यू कैन से मेन मेमोरी। Clear? Yes. So what is hardware? Yes, Hardware ma'am. का two parts. Okay. What is motherboard? ठीक है. What is CPU? And आपको होमवर्क में क्या करना है, मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके आओगे, उसमें से रीड करोगे तो भी चलेगा, बट एज ए इंफॉर्मेशन यू शुड नो कि मदरबोर्ड में क्या क्या फिट किया रहता है। सब नहीं आपको करना है, ओनली 5 to 10 कंपोनेंट्स। ओके, ऐसे फॉर योर नॉलेज के लिए। बाकी कॉलेज ओपन होने के बाद आई विल शो यू कि क्या क्या होता है, बट अभी के लिए यू हैव टू डू दैट। ओके, व्हाट इज सीपीयू?
ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ CPU दैट वी हैव सीन, ठीक है, व्हाट इज मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी देखा, उसमें हमने प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। Great students, yes, and please note down करते जाओ, okay.